Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. So in this video, we'll continue with intelligent agents, and here we will learn about the different types of environment in which an AI agent works. So let's begin. Now let's say if I ask you a simple question that can a same AI agent can work in a different types of environment, let's say in a hospital or in a chess game or in a car. So can the same AI agent work in all three environments? The clear answer is no, right? Because every AI system works in a different environment, right? So before designing any AI agent, we must understand where it will work and this is called as the task environment. तो किसी भी AI agent को डिजाइन करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि वो AI agent किस environment में वर्क करेगा, right? Because based on the environment जिसमें वो वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे, right? So this is known as the task environment. Task environment का क्या मतलब होता है? Task environment is basically the complete working environment in which any AI agent performs its task, right? So let's take a simple example of a self-driving car. राइट अब सेल्फ ड्राइविंग कार का टास्क क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार का टास्क है कि जो पैसेंजर्स है वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, राइट? और उसका एनवायरनमेंट क्या हुआ? सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एनवायरनमेंट हुआ रोड्स हो गई, ट्रैफिक हो गया, पेडिस्ट्रियंस हो गए, सिग्नल्स हो गया, वेदर हो गया. All these are acting as an environment for the self-driving car, right? Now, in the nature of environment, the another type of model that is most important is the Pease model, right? So Pease model is very important when it comes to agents and the environment. So Pease model stands for, P stands for performance, E stands for environment, A stands for actuators and S stand for sensors, right? So जब भी हम किसी AI agent को डिजाइन कर रहे होते हैं, AI agent, we must answer these four questions कि उसकी performance क्या होगी, environment, actuators and sensors. तो इन टर्म्स को हम ऑलरेडी ब्रीफ देख चुके हैं इन आ प्रीवियस वीडियो. तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं. सो व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस का मतलब है अगर मुझे समझना है कि लेट्स से इन टर्म्स ऑफ अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो हम कैसे समझेंगे उसको? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, राइट? सिमिलरली अगर मुझे समझना है किसी एआई एजेंट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो वो हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर ऑफ द एआई एजेंट, राइट? तो परफॉर्मेंस मेजर बेसिकली हमें ये बताता है कि हाउ सक्सेसफुल एन एआई एजेंट इज इन अचीविंग इट्स गोल. लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी है, तो सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी का गोल क्या होगा? सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी का गोल होगा टू रीच द डेस्टिनेशन सेफली, टू रीच क्विकली, टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, टू कीप द पैसेंजर्स कंफर्टेबल एंड सेफ and to save fuel. So all this becomes as the performance measure for the self-driving taxi, which is my AI agent, right? The next term of the Pease model is the environment. So environment मुझे क्या बताता है? Environment मुझे बताता है कि वो टैक्सी जो है कौन से environment में काम करने वाली है, right? For example, taxi will work on roads, right? But roads are similar, not enough. Taxi और तो क्या देखती है roads पे? Taxi देखती है कि क्या traffic होगा, right? Then it will also see the movement of other cars. Then it will also see the movement of the people or the pedestrians on the road. Then it will also see the movement of the police on the road. Then rain, then speed breakers. So all of this is acting as an environment for the self-driving taxi. The next term in the Pease model is the actuators. So actuators का क्या मतलब है? All the devices that are performing the action, right? So taxi की terms में actuators क्या क्या हुए? Taxi के लिए actuators हुए steering wheel हो गया, then brakes हो गए, then accelerator हो गया, then horn हो गया, then speakers हो गए. So all of these things which are performing any kind of action are working as an actuators for the taxi. So actuators क्या है? Actuators are the devices that perform the action. The last thing in the Pease model is about the sensors. So sensors क्या है? Sensors are those that collect information from the environment. So now how does the taxi know what is happening around the taxi? Taxi को कैसे पता चल रहा है कि उसके आसपास क्या क्या हो रहा है? So camera, GPS, radar, speedometer, microphone, all of these are acting as sensor जिसके बेसिस पे टैक्सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द इन्वायरमेंट. Now let's see this table. So इस टेबल में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है पीस डिस्क्रिप्शन गिवन है ऑफ द इंटायर टास्क एनवायरनमेंट फॉर एन ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर. तो एजेंट क्या है यहाँ पे? मेरा एजेंट है मेरी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी. उसके लिए सबसे पहले पीस मॉडल में आता है परफॉर्मेंस मेजर. तो क्या क्या चीजें परफॉर्मेंस मेजर में मैटर कर रही हैं? कि हम सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे,
फास्ट, लीगल, कंफर्टेबल ट्रिप हो, मैक्सिमाइज हो प्रॉफिट, मिनिमाइज हो इम्पैक्ट ऑन अदर रोड यूजर्स, ऑल ऑफ दीज विल हेल्प अस इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टैक्सी. देन इन्वायरमेंट में कौन से इन्वायरमेंट में टैक्सी काम कर रही है, रोड्स पे, देन अदर ट्रैफिक, पुलिस, पेडिस्ट्रियन मूवमेंट, कस्टमर्स, वेदर, ऑल ऑफ दिस आर इन्वायरमेंट फॉर द टैक्सी. देन एक्चुएटर्स क्या है, जिसके बेसिस पे वो एक्शन ले रही है, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, ब्रेक हो गए, सिग्नल्स हो गए, ऑन हो गया, डिस्प्ले हो गया, ऑल ऑफ दीज आर दी एक्चुएटर्स जिसके बेसिस पे वो एक्शन ले रही है. देन सेंसर्स क्या हो गए, कैमरास, रिडार, स्पीडोमीटर, जीपीएस, एक्सेलेरोमीटर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ऑल ऑफ दीज आर सेंसर्स जिसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. सो कैमरा से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कैमरा हमें हेल्प कर रहा है पता करने में कि बाकी रोड्स क्या क्या हैं, बाकी कार्स कौन कौन सी हैं रोड्स पे, देन सिग्नल्स कौन कौन से हैं, देन अदर पेडिस्ट्रियन मूवमेंट, वो सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरास. रेडार हमें कैसे मेजर, रेडार सेंसर कैसे काम कर रहा है, रेडार जो होता है वो हमें हेल्प कर रहा है मेजर करने में डिस्टेंस, कि हम दूसरी कार से अपने एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. वो कैसे पता चलेगा टैक्सी को, विद द हेल्प ऑफ रेडार. देन जीपीएस से उसे क्या पता चलेगा, जीपीएस से पता चलेगा कि वो कहाँ पे है इस टाइम पे, जो लोकेशन है वो सब कहाँ से पता चलेगा, जीपीएस से पता चलेगा. देन कम स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर हमें क्या बता रहे हैं कि हम कितनी फास्ट टैक्सी ड्राइव कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी, स्पीडोमीटर से. देन एक्सेलरोमीटर से हमें कितनी स्पीड अपनी रखनी है, राइट, एक्सेलरेशन कितनी रखनी है, वो सब चीजें पता चलेंगी एक्सेलरोमीटर से. देन माइक्रोफोन मुझे क्या बताएगा कि हम पैसेंजर की कमांड्स को समझ सके, राइट. जैसे पैसेंजर ने बोला कि मुझे एयरपोर्ट जाना है या मुझे इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफोन. तो ऑल ऑफ दीज आर सेंसर्स जिसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम आर एनवायरनमेंट. तो दिस इज द इंटायर पीस डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क एनवायरनमेंट. सो ये जो सारी चीजें हैं ये है मेरा इंटायर टास्क एनवायरनमेंट फॉर एन ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर. नाउ क्यों हमारे लिए टास्क एनवायरनमेंट को समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई एआई एजेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज जितना डिफिकल्ट मेरा इन्वायरमेंट होगा, द मोर डिफिकल्ट द इन्वायरमेंट, द मोर डिफिकल्ट द इन्वायरमेंट, उतना ही इंटेलिजेंट होना चाहिए मेरा एआई एजेंट. द मोर इंटेलिजेंट द एआई एजेंट शुड बी, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेस खेल रहे हैं, कोई चेस प्लेइंग एआई है, तो उसका एआई एजेंट का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. बट अगर हमें सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, राइट, सेल्फ ड्राइविंग कार को कहाँ पे काम करना है, सेल्फ ड्राइविंग कार विल वर्क ऑन द रोड्स ऑफ लेट्स से दिल्ली, राइट. तो उसका इन्वायरमेंट जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंट ऑफ द चेस प्लेइंग एआई, राइट. सो जितना ज्यादा इन्वायरमेंट डिफिकल्ट होगा उतना ही ज्यादा मेरा एआई एजेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि वो इस इन्वायरमेंट को समझ सके और उसमें वर्क कर पाए. Now here in this table हमें different types of AI agent types given है and उनकी piece description given है. The first type of agent is medical diagnosis system. So medical diagnosis system में now what does a doctor do? और वो doctors check symptoms, reports check करता है, medicines देता है. Exactly the same thing as an AI medical diagnosis system will do, right? So performance measure करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि how do we know कि मेरा जो AI agent है वो अच्छा है या नहीं. वो कैसे पता चलेगा, अगर मेरा पेशेंट हेल्दी है, अगर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो लेस है, तो ये मेरे परफॉर्मेंस मेजर हो गए. देन कौन से इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है, वो इन्वायरमेंट में काम कर रहा है हॉस्पिटल में, पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, तो वो एआई एजेंट का इन्वायरमेंट है. एक्चुएटर्स क्या है कि कैसे वो एआई एजेंट रिस्पॉन्ड करेगा, एक्शंस कैसे लेगा, डायग्नोसिस दिखा के, क्वेश्चंस को डिस्प्ले करवा के, ट्रीटमेंट सजेस्ट करके. सो दोज आर द एक्चुएटर्स फॉर द एजेंट. एंड व्हाट इज द सेंसर्स, सेंसर्स क्या है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, पेशेंट की एंट्रीज, एंटर जो भी सिम्टम्स पेशेंट एंटर कर रहा है उसके बेसिस पे, देन वॉइस इनपुट या फिर टेस्ट रिपोर्ट्स. तो ये सारे सेंसर्स हैं जिसके बेसिस पे एआई एजेंट जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है. द सेकेंड टाइप ऑफ एजेंट इज सैटेलाइट इमेज एनालिसिस सिस्टम. नाउ अगर हम बात करें कि हाउ डज गूगल मैप्स आइडेंटिफाई रोड्स, फॉरेस्ट एंड रिवर्स, कैसे गूगल मैप आइडेंटिफाई करता है, यूजिंग एआई, राइट. तो परफॉर्मेंस मेजर क्या है इसके लिए कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोड्स, फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स, वो उसका परफॉर्मेंस मेजर हो गया. इन्वायरमेंट क्या हो गया, अर्थ हो गया, सैटेलाइट, वेदर, ऑल दिस आर इन्वायरमेंट फॉर द एआई एजेंट. एक्चुएटर्स क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे एक्शन लेगा वो, यूजिंग द
हेल्प ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट या क्लासिफाइड इमेजेस, वो उसके लिए एक्शंस हैं. एंड सेंसर्स क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, थ्रू हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा, दैट इज द सेंसर. Then part picking robot is another agent type. Now सपोज अगर इंडस्ट्री एग्जांपल हम कोई लें कि अगर कोई रोबोट जो है इट इज स्टैंडिंग बिसाइड अ कन्वेयर बेल्ट, तो उसका जॉब क्या है, पिक ओनली द करेक्ट पार्ट्स, राइट. सो परफॉर्मेंस मेजर क्या है उसके लिए कि करेक्ट पार्ट जो है वो पिक हुआ या नहीं, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर. तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन द करेक्ट बिन्स, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर. इन्वायरमेंट क्या है उसके लिए, इन्वायरमेंट है फैक्ट्री, कन्वेयर बेल्ट, बिन्स, दैट इज द इन्वायरमेंट. एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर है उसका रोबोटिक आर्म एंड हैंड, दैट इज द एक्चुएटर. एंड सेंसर कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कैमरा, जॉइंट सेंसर्स, जॉइंट एंगल सेंसर्स, टैक्टाइल सेंसर्स, दोज आर दी सेंसर्स. देन रिफाइनरी कंट्रोलर. रिफाइनरी कंट्रोलर में नाउ इमेजिन अ पेट्रोल रिफाइनरी, तो एआई यहाँ पे क्या चेक करेगा, एआई चेक करेगा टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो. अगर टेम्परेचर मेरा हाई है तो एआई इमीडिएटली उसको रिड्यूस कर देगा. तो परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि मेरी रिफाइनरी कितनी सेफ है, कितना मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्योर है, प्रोडक्शन कितनी हाई है. सो प्योरिटी, यील्ड, सेफ्टी, दीज आर दी परफॉर्मेंस मेजर. एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर है दी पंप्स, हीटर्स, स्टरर्स, डिस्प्लेस, दीज आर दी एक्चुएटर्स जिसके बेसिस पे वो एक्शन ले रहा है. इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट है जो रिफाइनरी में रॉ मटेरियल्स, ऑपरेटर्स, दोज आर दी इन्वायरमेंट. एंड सेंसर्स क्या है, जो भी मेरी केमिकल सेंसर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो सेंसर्स, दोज आर दी सेंसर्स जिसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. देन लास्ट एग्जांपल इज इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर. इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर क्या होगा, उसके लिए किसी भी एआई एजेंट है, राइट. अगर हम उस किसी भी इंग्लिश लर्निंग ऐप से इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा मेरा कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, तो स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर. इन्वायरमेंट क्या है मेरा, स्टूडेंट्स हो गए या जो भी लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रही हूँ वो मेरे लिए इन्वायरमेंट है. एक्चुएटर क्या है, एक्शन कैसे ले रहे हैं, डिस्प्ले ऑफ एक्सरसाइजेस, फीडबैक, स्पीच, दोज आर दी एक्चुएटर्स. एंड सेंसर्स क्या है, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये सारे सेंसर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. तो एवरी एआई सिस्टम, चाहे कोई भी एआई एजेंट हो, कोई भी एआई सिस्टम हो, हर एक के लिए अपना एक अलग पीस डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है. जैसे जैसे एआई एजेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे पीस डिस्क्रिप्शन हर एक एआई एजेंट के लिए भी चेंज होती जाएगी. Now let's understand the properties of task environment. The first property is the fully observable environment. So fully observable environment means the agent can see everything it needs to make the correct decision. And partially observable environment is the agent cannot see everything. Some information is hidden or unavailable. तो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में क्या होता है, एजेंट सब कुछ देख सकता है जो जितनी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ करेक्ट डिसीजन. बट इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, एज द नेम सजेस्ट, एजेंट को सब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दिखती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हिडन होती है या अनअवेलेबल होती है, राइट. सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चेस. नाउ व्हेन वी आर प्लेइंग अ चेस विद एन एजेंट, तो वहां पे क्या है, द प्लेयर कैन सी everything on the board. It can see every piece, every move is visible, right, and the entire board is visible, right. So nothing is hidden from the player. So hence chess किस टाइप का environment है, chess एक fully observable environment है जहाँ पे हमें सब कुछ visible है, right. Let's take an example of partially observable environment. Let's say जब हम drive कर रहे हैं, when we are driving, so when we are driving, let's say कोई self driving car है, तो उस केस में can the driver or can the car can see any car which is behind any truck, right, or can it see the fog, और कैन इट सी एनी ब्लाइंड टर्न्स. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, हिडन है. हेंस ड्राइविंग किस टाइप का एनवायरमेंट है, इट इज अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट. पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट. तो बेसिकली लेट्स से अगर एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, क्लास में टीचर ने लेट्स से कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है स्टूडेंट्स को दिखा दिया. Now you can see all questions. So this is a fully observable environment. But let's say अगर टीचर ने कुछ questions को hide करके रखा until the last minute, that means you don't have access to the complete information. So that becomes a partially observable environment. The next properties of task environment is single agent versus multi-agent.
तो सिंगल एजेंट का क्या मतलब है, लेट्स से अगर हम कोई मैथ्स प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अकेले, सो आर वी कंपीटिंग विद एनीवन? नो। तो सिंगल एजेंट क्या है, जहां पे ओनली वन इंटेलिजेंट एजेंट इज वर्किंग, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारे कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे ओनली वन इंटेलिजेंट एजेंट इज वर्किंग। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ मल्टी एजेंट। मल्टी एजेंट का क्या मतलब है, जहां पे मोर देन वन इंटेलिजेंट एजेंट एग्जिस्ट, राइट? सो मोर देन वन इंटेलिजेंट एजेंट एग्जिस्ट। लेट्स से अगर चेस का एग्जांपल है, तो चेस में क्या है, टू प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं, तो दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो इट इज अ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। देन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से क्रिकेट। क्रिकेट में एक से ज्यादा टीम खेलती हैं, राइट? सो बोथ द टीम्स कैन अफेक्ट ईच अदर्स रिजल्ट, राइट? देन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज ट्रैफिक। ना जब भी हम रोड मूवमेंट में या किसी भी कार की बात करें जो रोड पे मूव कर रही है, सो बहुत सारी चीजें उसको अफेक्ट कर रही है, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारी पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है, राइट? सो मल्टी एजेंट इज जहां पे एक से ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंट जो है एक दूसरे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वर्किंग इन अ सिंगल एजेंट वर्सेज अ मल्टी एजेंट एनवायरमेंट। The third type of task environment can be deterministic versus non-deterministic. तो deterministic environment का क्या मतलब है, सपोज अगर हमने कोई इनपुट दी 2+3 टू द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा, 5। इट विल ऑलवेज शो 5। अगर मैं उससे कल भी पूछूं 2+3 क्या होगा, अगेन इट विल गिव मी द आउटपुट एज 5 ओनली, राइट? सो डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है, सेम एक्शन ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट, राइट? ऐसा नहीं होगा आंसर मेरा आज कुछ और है और कल कुछ चेंज हो जाएगा। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक, जहां पे एक एक्शन विल ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट। जैसे कैलकुलेटर हो गया, चेस हो गया, अगर हम कुछ नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो आउटपुट विल ऑलवेज बी द सेम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कैन विल आई एम इन अ पोजिशन टू प्रिडिक्ट टुमारोज ट्रैफिक, या क्या हम कल का ट्रैफिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर टुमारो विल रेन और नॉट, राइट? एग्जैक्टली वेदर इट विल रेन और नॉट, राइट? और कैन यू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एनी स्टॉक मार्केट, राइट? सो ये ऐसे एक्शन है जहां पे रिजल्ट विल वेरी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज जहां पे सेम एक्शन में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेदर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रोबोट नेविगेशन हो गया। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक जहां पे एक्शन हमारा डिफर कर जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज एग्जिस्टिंग। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या है, मेरा डिटर्मिनिस्टिक इज बेसिकली प्रिडिक्टेबल because it is always giving me the same result, and non-deterministic is uncertain. अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक से एक क्लोजली एसोसिएटेड टर्म होती है स्टोकैस्टिक। स्टोकैस्टिक का क्या मतलब होता है, स्टोकैस्टिक इज जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम मेरी पता होती है, वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। लेट्स से अगर मुझे टुमारो के वेदर फोरकास्ट में पता है कि देयर इज 80% चांस ऑफ रेन एंड 20% चांस ऑफ नो रेन, ना क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, सो नाउ दिस इज नॉट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इवेंट, दिस बिकम्स अ स्टोकैस्टिक एनवायरनमेंट, राइट? सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, जहां पे आउटकम तो अनसर्टेन होती है बट कोई प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होती। बट अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है बट आउटकम इज अनसर्टेन बट प्रोबेबिलिटीज आर नोन, देन दैट बिकम्स अ स्टोकैस्टिक एनवायरनमेंट। So this is the difference between non-deterministic and stochastic. Non-deterministic दोनों में ही, stochastic and non-deterministic दोनों में ही uncertainty रहती है, but non-deterministic में आपको कोई probability नहीं given होगी, but stochastic में probabilities will be given. So this was deterministic versus non-deterministic agent. This was all about this video. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.